हाय गाइस। ओके, पहले ही गड़बड़ हो रही है। ओके, हाय गाइस, कैसे हो? होप यू आर डूइंग गुड। सो दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ अबाउट little bit of general aptitude which I am learning, and I wanted you to also learn from me and learn with me basically. So what I want is we are going to do a topic which is very well known, that come in the government job exam or any exam that you give. And you know what, I'm not preparing it from any competitive exam book. I'm just opening my NCRT. Okay, 11th, and my NCRT basically means class 11th NCRT book. You can see here that it is the NCRT book, and it is, if you wanted to do, you can see that it is on page number 13, and it is basically chapter number 1, and we all have studied this, those who have cleared class 12th and they are in their graduation or completed that. So this is just a revision video for everyone for about that topic of Venn diagram. Okay, so what we are going to do in this video is I am going to read what is there in this NCRT book, and I am going to cover each and every topic that cover in this part of Venn diagram session. Basically I was studying 11th class. I was studying this 11th class chapter number 1 sets. So I thought let's just make a video firstly about the Venn diagrams, because Venn diagram is a very most common topic in government job exam. Whenever you're going to give any government job exam, mostly when it is related to the science field, you see this topic, and this topic is the most frequent one that appears in your exam. So which is that topic is Venn diagram, of course. So we are going to do this topic for today. This is just too much yapping about this. Let's just start, and let me read it first. Okay, then I will show you what is a Venn diagram is. Let me just increase the size of it. Now you are able to see it. Okay, I'm not going to highlight it here, so I hope you are able to read it with me and understand what is Venn diagram. Most of the relationship between sets can be represented by the means of diagrams. Okay, we know that it is made up of diagrams which are known as Venn diagrams. Venn diagrams are named after, okay, these diagrams consist of rectangles, closed curves, circles, universal sets. So see, basically, sorry guys, I was interrupted. So what we basically where we were saying that what is Venn diagram or Venn diagram. What it is, I don't know how to pronounce it. I will check it in the very next video I will make. Okay, so Venn diagrams. So it is named after the English logician John Venn. Okay, these diagrams consist of rectangle, closed curve, circle, universal set. ओके एंड द सबसेट्स. बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, एक रिविजन ही हो रहा है कि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा बॉक्स होता है जो हम बनाते हैं, इसको ये यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं. इसी के अंदर अगर मैं दिखाना चाहूँ, ओके गिव मी अ सेकेंड, इसी के अंदर मैं दिखाना चाहूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. इसको मैं दिखाना चाहूँ, ये मेरे होते हैं मेरे सबसेट्स, जो इसके अंदर इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट. ओके, पार्डन मी भाई. एंड सबसेट लिखते लिखते गलत स्पेलिंग हो जाती है कभी कभी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. नाउ लेट्स जस्ट move it to the very next topic. Give me a second. Okay, so where I was saying that this here we have basically subsets, we have universal set. Okay, so in Venn diagrams the elements of set are written in the respective circles. So यहाँ पर हम उसके elements को denote करते हैं. Supposingly कोई एक x element है इसके अंदर. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें याद ही है कि इतना ऐसा कुछ होता है. दिस इज़ जस्ट फॉर रिविजन ऑफ दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड क्लास 12th, ओके, or 11th, any of the class, and they wanted to revise this concept.
which is basically used in government job exam. So this is illustration number 1. Okay, in figure 1.2 we have universal set. Now they considered the universal set to be 1, 2, 3 up to 10. Okay, and now they have this representation of the universal set. Okay, got it. Now what they do, they have A as a subset, 2, 4, 6, 8, 10. Now you can see in A we have 2, 4, 6, 8, 10. Okay, no doubt about that. Let's just do only U and A. Only A. We are not going to draw B. Okay, pardon, my drawing skills are so bad. So this is A. Here is 2. What are the elements of the set? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so 2, 4, 6, 10 is also here, somewhere here, and 8. So 2, 4, 6, 8 and 10. So we have basically 5 elements in this A. So this is whole of A. Now we are able to get it that this A is basically the subset of the universal set this. Okay, I erase that. Okay, why is this happening? Okay, pardon me. Next we have is illustration number 2. In here in figure 1.3, so they have mentioned before the figure 1.2 I was mentioning something wrong. I wanted to mention figure 1.2. so this is the figure 1.2. this is what we have, the illustration. Okay, and the remaining elements will be outside the set. Okay, now this is illustration number 2. We have 1 से लेकर 10 तक के elements in the universal set. 2, 4, 6, 8, 10 हैं. B भी एक सबसेट है. B में कैसा सबसेट है, सिर्फ देखो एक बार ड्रॉ करके इधर दिखा देती हूँ. हालांकि समझ आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. ये है हमारा A, ठीक है. ये है हमारा, देखते हैं क्या है A और क्या है B. B में हमारे पास 4 और 6 ही एलिमेंट्स हैं. सो रिमेंबर दिस इज़ B. सो इसमें सिर्फ 4 आएगा, इसमें सिर्फ 6 आएगा. ना B को थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि समझ आ जाए. ठीक है, हाँ, दिस इज़ B, दिस इज़ B. अब ये जो B है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 4 और 6, ये सिर्फ इसी के अंदर ही रहेंगे. इससे बाहर यहाँ 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 नहीं होंगे. गॉट इट, यहाँ नहीं होंगे. ओके, आई हैव वेरी बिग साइज. यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे. ठीक है, अब बात करते हैं A की. चलो A को किसी और कलर से बनाते हैं, रेड से बनाते हैं. ठीक है, अब A बना रहे हैं. A इससे बाहर है, A इससे बाहर है, लेकिन इसको भी कंटेन करता है. ठीक है, तो ये है हमारा A. अब A के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है. कहने का मतलब समझ रहे हो. देखो, इससे हाईलाइट करके बताती हूँ कि मैं A क्या कहना चाह रही हूँ और B क्या कहना चाह रही हूँ. अगर मैं सिर्फ B के लिए बात करूँ, तो B क्या है, ये है B सिर्फ इतना हिस्सा है. इमेजिन कर पा रहे हो, B सिर्फ ये है. लेकिन अगर मैं इसको अंडू कर दूँ, ठीक है, ओके, अगर मैं A की बात करूँ तो A क्या है, A है ये पूरा. येलो वाला हिस्सा भी आ रहा है उसके अंदर, इस A के अंदर येलो वाला हिस्सा भी आ रहा है. तो क्या B A का सबसेट है, बिल्कुल है. इसका मतलब B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड वी कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल, क्योंकि सिर्फ 4 और 6 एलिमेंट है B के अंदर. 4 और 6 एलिमेंट है और वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 के अंदर, क्योंकि A के अंदर सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10. तो ये 4 और 6 तो आ ही रहे हैं, तो B A का सबसेट तो है ही है. तो दिस इज़ वेरी बेसिक. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक कंसेप्ट बिकॉज NCERT है, तो बहुत बेसिक से ऊपर लेकर जाएंगे, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी. अब आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट पे कुछ ऑपरेशन. अब यहीं इसी सेट पे मेरा ना वेन डायग्राम जो है,
इसी में ही मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी। बेसिकली ऑपरेशन के लिए बात करते हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब, माय बैड उल्टा लिख दिया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब यूनिवर्सल, बोथ। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है? ठीक है, यूनिवर्सल। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑन नंबर्स. Okay, we have performed one pair number to get another number. For example, we perform the operation on addition on the pair of number 5 and 13, we get number 18. Okay, again performing operations. You know what are operations? ये ना अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको किसी और नाम से भी मिलेगा। ऑपरेशंस बहुत बहुत ना अलग सा नाम है। ऑपरेशंस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अपनी हायर क्लासेस में से बताऊँ तो ऑपरेशंस बेसिकली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिविज़न, ठीक है, और आप क्या कह सकते हो, सब्ट्रैक्शन। दीज आर सम ऑपरेशंस ऑन नंबर्स दैट वी यूजुअली डू ना। नंबर्स पे हम यही करते हैं कि जैसे मान लो 2 नंबर्स हैं, 2 + 2 कर दिया, 4 आ गया। लेकिन पता है अब क्या होता है, हम सेट्स क्यों सीखते हैं और ऑपरेशंस क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम सेट में 2 सेट को जोड़ते हैं। जैसे ये 2 4 है और ये 5 6 7 है, ये 2 सेट है, ठीक है। मैं इन दोनों सेट्स को ऐड कर सकती हूँ। अब कोई मेरे से बोलेगा इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, ऐसे नहीं होता है। किसी ने अगर आपको ऐसे बताया है तो वो बहुत गलत है, हालांकि सबको पता होगा कि ऐसा नहीं है। हाउ टू ऐड, वी ऑल नो दैट हाउ टू ऐड, ओके। सो बेसिकली वी हैव, सो वेयर आई वाज सेइंग दैट हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पता है जब हम इसी के अंदर ऑपरेशंस के अंदर और बड़ी थ्योरी आ जाती है ना, और एक बिग थ्योरी आती है, वो जो थ्योरी होती है वो होती है ग्रुप थ्योरी। अब ये ग्रुप थ्योरी थोड़ी बीएससी एमएससी की बातें हो गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। हालांकि ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें हैं, बट लेट्स जस्ट से कि हम ना क्या करते हैं, हम ऑपरेशंस लेते हैं और अगर कोई सेट उन ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करा जाए, उस ऑपरेशन पे कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको सेटिस्फाई करा जाए तो वो उसे हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो जाएगा अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो, बिकॉज बेसिक भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। ओके, सो वी वर सेइंग कि हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब नंबर के साथ छेड़खानी करना ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, द बुक, व्हाट वाज द बुक saying, similarly there are some operations when performed on 2 sets give rise to another set। अगर मान लो मेरे पास 2 सेट हैं, मान लो कुछ एलिमेंट है 2 3, इसमें है 1, अगर मैं इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाऊँ, ऑपरेशंस मतलब एडिशन लगाऊँ, सब्ट्रैक्शन लगाऊँ, मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ, डिविजन लगाऊँ, कुछ भी लगा सकती हूँ, इट्स माई चॉइस, कुछ भी लगा सकती हूँ। तो अगर मैं वो ऑपरेशन लगाऊँ तो मुझे एक ना नया ही सेट मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या ऑपरेशन में लगा रही हूँ। प्लस लगाऊँगी तो अलग मिलेगा, माइनस लगाऊँगी तो अलग एक सेट मिलेगा, मल्टीप्लाई लगाऊँगी तो एक अलग मिलेगा, डिवाइड लगाऊँगी तो एक अलग मिलेगा, ठीक है। अलग अलग सेट मेरे को मिल सकते हैं इन्हीं में से। अच्छा, अब कैसे होता है, देखो कैसे ऑपरेशन करें, कैसे करें, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि ऑपरेशंस लगते हैं और क्या होता है, थोड़ा बेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट, लेट 2 ओके, सर्टेन ऑपरेशंस property henceforth be referred to all set as a subset of some universal set. Now keep in mind, आप इस चीज़ को अंडरलाइन चाहो तो भी कर सकते हो, all are set we consider as a subset of universal set. Now there is a very controversial थिंग अबाउट यूनिवर्सल सेट इज़, कोई यूनिवर्सल सेट होता ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल सेट होता है बट यूनिवर्सल सेट इज़ सो बिग
कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो हम यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करते हैं। वेन डायग्राम वाली जो चीज़ हमने दिखाई थी वो कुछ ऐसी थी, तो वो इतना लिमिटेड नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ 3-4 ही सेट होंगे, उसके अंदर इनफाइनाइट सेट्स आ सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इज़ लाइक अ यूनिवर्स, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ही इसमें। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे सेट हैं वो सबसेट हैं किसी ना किसी, देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ऑफ सम यूनिवर्सल सेट, किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होगा ही। जैसे नेचुरल नंबर हमें पता है किसका होता है, इंटीजर्स का होता है। इंटीजर्स किसका होता है, रेशनल नंबर्स का होता है। रेशनल नंबर्स किसका होता है, रियल नंबर्स का होता है। तो ये सारे हमें चीज़ें पता होंगी। आई होप यू नो दिस कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, अच्छा ऐसा इंटीजर को जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर रेशनल नंबर्स और फिर रियल नंबर्स आते हैं। इस तरीके से ये सबसेट्स होते हैं। ये तो थोड़े ही बड़े सबसेट्स हैं, इससे भी बड़े सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स जस्ट नॉट गेट टू दैट एक्सटेंट। लेट गेट बैक टू द टॉपिक विच इज़ यूनियन ऑफ द सेट्स। नाउ यूनियन के बारे में बात कर रहे थे तो वापस यूनियन पे ही आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन क्या कह रहा है, लेट ए बी एनी टू सेट्स, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. The common elements will be taken only once. The symbol U is denoted as the union. Symbolically we write it as union. Now, as I was saying कि union में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऑल एलिमेंट्स, देखो इसमें क्या आते हैं, ऑल एलिमेंट्स प्लस वन टाइम कॉमन एलिमेंट। ये इसकी एक तरीके से आप कहो रफ डेफिनेशन है कि इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स और एक टाइम कॉमन एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने ये सेट ले लिया 2 4 6 8, दूसरा सेट ले लिया 6 8 10 12, ठीक है। अब यहीं पे इसी का ही एग्जांपल ले रही हूँ, ए यूनियन बी करूँगी तो क्या आएगा, पहले तो ऑल एलिमेंट्स लिख लो, तो 2 4 6 8 2 4, अच्छा यहाँ लिखते हैं पहले रफ में 2 4 6 8, यहाँ वाला लिखो 6 8 10 12। पहले आपने ए के एलिमेंट्स लिखे फिर आपने बी के एलिमेंट्स लिखे। आपको क्या करना है रफ में, जब आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, पहले आपने लिखे ए के एलिमेंट्स फिर आपने लिखे बी के एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं 6 8 6 8। तो इसको कैसे लिखना है, वन टाइम, सिर्फ एक ही बार लिखोगे, एक टाइम लिखोगे 2 4 6 8 10 12। सो दिस इज़ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। आप एक ही बार उसको काउंट करते हो यूनियन में, यही लिखा हुआ है इसमें। अब आप इसके और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम हियर, लेट मी जस्ट रीड इट आउट। एग्जाम्पल नंबर 13, ए यूनियन बी दे रखा है ए के बराबर। वी हैव, अच्छा वाई ना सी, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी बताई है जो आपके वेन डायग्राम में यूज़ होगी। कोई मेरे से कह भी सकता है कि क्या ये फालतू चीज़ें हैं, बट हो भी सकती है नहीं भी, बट दिस इज़ जस्ट अ बेसिक, very basic starting for this Venn diagram and I will post 2-3 videos I guess, because इससे कम में तो क्या ही होगा, ऑलरेडी 19-20 मिनट हो गए हैं। So let's just get back। बेसिकली क्या चीज़ होती है, देखो मैं समझाती हूँ कि आपको क्या दिख रहा है। आपके पास एक ए है सेट, एक आपके पास है सेट बी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं लग रही, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूँ, अच्छा यहाँ वाले से ही निकाल देती हूँ, ए यूनियन बी निकालूँ तो आएगा क्या, बिना रिपीट वालों को एक ही बार, ए रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। ई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, लिखा ही जाएगा। आई एक ही बार लिखा जाएगा, ओ एंड यू। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के अंदर। अब आप देख रहे हो ए यूनियन बी ए के ही बराबर आ रहा है एज इट इज़। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि ए आई यू इसमें भी आ रहा है ए आई यू,
AIU इसमें भी आ रहा है, तो B किस में क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो अगर जब ऐसा हो कि अगर B A का सबसेट है, तो अगर मैं दोनों का यूनियन करूँगी तो बड़ा वाला ही सेट आ जाता है। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है। B क्या है, इसका छोटा वाला पार्ट, ये क्या है, इसका बड़ा वाला। अब आप सोच के देखो अपने दिमाग में। ओहो, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि A यूनियन B क्या होगा, A ही होगा, मतलब बड़ा है और एक छोटा है। अच्छा देखो, जैसे मान लो इसके लिए कुछ एग्जांपल सूझ नहीं रहा है, बट कहने का मतलब ये है कि जो छोटा वाला है वो इस बड़े वाले के अंदर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लो नेचुरल नंबर का यूनियन ले लूँ इंटीजर्स के साथ, इंटीजर्स को मैं Z से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा वाला है इंटीजर्स, तो मुझे इंटीजर्स ही मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इसके अंदर एग्जिस्ट करते ही है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं -∞, -1 0 1 2 इन्फिनिटी, ये मेरे इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये एक मिनट, ये 3 ही डॉट लगते हैं। हाँ, तो ये जो है ये क्या है मेरे, ये इसी के अंदर से तो आ रहे हैं, ये यहाँ से ही तो आ रहे हैं, तो ये रिपीट हो जाएंगे। जो रिपीट होने वाले हैं हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो मैं इस पूरे सेट को इंटीजर्स लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब है बड़ा वाला सेट आ जाता है जब मैं यूनियन लेती हूँ और छोटा वाला उसका सबसेट है, तो बड़ा वाला सेट आ जाता है। ये तभी होता है जब छोटा B वाला, छोटा वाला जो हमारा B है, ये हमारा सबसेट होना चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, अब लेट्स जस्ट क्लियर दिस पेज एंड लेट्स जस्ट मूव इट टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। X मान लो राम, गीता, अकबर है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर in school hockey team. Y be the Geeta, David, Ashok be the set of students from class 11th who are in school football team. X union Y निकालो, बहुत ईजी है, ठीक है। राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, जो नाम रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है बस, और क्या करना है, इतना ईजी क्वेश्चन। नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स, the set C which consists of all those elements which are either in A or in B including those which are there in both. In symbol we write. Now this is something which is very well known, which is union. बहुत मस्त है यार ये। जब हम यूनियन की बात कर रहे थे ना, अब इस डायग्राम पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ, इसी को बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ओके। ए को इससे बनाती हूँ, ए मेरा ये है, ओके। बी को, बी मेरा ये है, ये मेरा है बी, ये मेरा है ए, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, ए यूनियन बी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब मैंने बताया था, अभी बताया था कि बी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स प्लस नॉट, ओके सॉरी माय बैड, वन टाइम रिपीटेड, ठीक है। सिर्फ एक बार सारे एलिमेंट्स और एक बार रिपीटेड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कॉमन वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि ये रेड वाले के भी एलिमेंट्स, ओहो, ये रेड वाले के भी एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर इस ब्लू वाले के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ रहा है कि इसमें ना कॉमन चीज़ें हैं, मतलब इसका हिस्सा अगर मैं तोड़ के देखूं तो ए मेरा ऐसा है और ब्लू मेरा ऐसा है, ठीक है। अच्छा मैं जोड़ के नहीं, अलग करके भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। ब्लू मेरा ऐसा है, ये मेरा ब्लू है। तो कहने का मतलब ये मेरा है ए, ये मेरा है बी। इन दोनों को जोड़ूंगी तो कुछ कॉमन एरिया में, इस एरिया में कुछ क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ए यूनियन बी से। अब बहुत
धीरे से मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को पढ़ो, बिकॉज अगर मैं अकेले पढ़ूँगी तो फिर मेरे को ही समझ आएगा, आपको नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए बी इज़ द सेट सी। वो कौन सा है? देखो, ए यूनियन बी को इन्होंने क्या बोला है? सी मान लिया है। मतलब इन्होंने एक ए यूनियन बी को सेट सी मान लिया है। जो भी बन रहा होगा उसको मैंने सेट सी ले लिया, क्योंकि एक ना एक सेट तो बनेगा, तो इन्होंने नाम दे दिया उसको कि वो सी सेट है। जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसमें, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सी। और इसको मैं डिफ़ाइन कैसे कर रही हूँ? क्लियरली इन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो ए में बिलोंग करेगा या एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको सवाल पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या है? मतलब उसमें ए के भी एलिमेंट्स हों, ए के एलिमेंट्स हों, ठीक है, बी के भी एलिमेंट्स हों। अच्छा, चलो देखते हैं। तो अब इसमें ये जो आपको ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ना, मतलब पूरा हाईलाइटेड पोर्शन, मतलब ये वाला, अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, इससे हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये वाला जो पूरा आपको सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये लोग क्या करते हैं? इस वाले को सिर्फ एक बार काउंट करते हैं। कॉमन वाले को कितनी बार काउंट करते हैं? कॉमन वाले को कितनी बार काउंट करते हैं? 1 टाइम। क्लियर? तो इसमें ए यूनियन भी ये हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। उसमें दोनों में आने वाले एलिमेंट्स को भी हमने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन उनको एक ही बार काउंट किया है। काउंट एक ही बार किया है, काउंट 1 टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है जब व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, ओके, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो हमें जब यूनियन लेना होता है या रिलेशनशिप वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, तो हम उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको काउंट कैसे करें। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर डिस्क्लोज कर दूँगी, मुझे लगा दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट, बट दे डिडंट। सो लेट्स जस्ट मूव फर्दर एंड सी कि इसमें है कैसा ना, इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो जो स्पेशल चीज़ है वो बाद में देख लेंगे। ए यूनियन बी क्या है? बी यूनियन ए ही आएगा। अच्छा, दोनों के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही बार काउंट करना है, और दोनों एलिमेंट्स एक ही बार काउंट करना है, और ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों के एलिमेंट्स में से रिपीटेड वालों को एक ही बार काउंट करना है, प्लस ऑल एलिमेंट्स। तो यही तो चीज़ें हैं। ए यूनियन बी यूनियन ए, दोनों के बराबर होगा। इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है, समझने जैसा है कि दोनों सेट का यूनियन ले लियो, मतलब मैं दोनों सेट में बड़ी चीज़ें ले रही हूँ और रिपीटेड वालों को छोड़ रही हूँ, मतलब एक ही बार ले रही हूँ, रिपीटेड वालों को छोड़ नहीं रही, सिर्फ एक बार ले रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? यूनियन की एक प्रॉपर्टी है। एक और होती है, इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आगे चल के बहुत फेमस है ये नाम, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी आती है आपकी एसोसिएटिव। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में मेंशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्लियरली। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। अच्छा देखो कैसे, कि ए यूनियन बी क्या आएगा। जैसे मान लो कोई सेट आ रहा है ए यूनियन बी, चलो लेके देख लेते हैं ना एक एग्जांपल से। जैसे ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा अच्छा ये तो हमें कोमा डालना पड़ेगा ना। बी है हमारा 3 4 5, और सी है हमारा 5 6 7। Now the question arises is कि, ठीक है, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले यहाँ ब्रैकेट लगाया है, फिर बाहर वाले में लगा दिया है। पहले इन दोनों को चूज़ किया है, अब इन दोनों को करेंगे, ठीक है।
अच्छा तो पहले बी यूनियन सी को कर लेते हैं। बी यूनियन सी का मतलब क्या है? बी यूनियन सी का मतलब है कि क्या मैं बी यूनियन सी करूँ तो क्या आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, लिख लेते हैं। इन दोनों में आएगा 3 4 5 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 यूनियन करूँ मैं ए के साथ। ए को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ फ़िलहाल। ए क्या है मेरा, 1 2 3, ठीक है। अब क्या आएगा, दोबारा लिख के दिखाते हैं क्या आएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा, यूनियन क्या आएगा, यूनियन आएगा इन दोनों का 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखना है, सिंपल। अब उसके बाद क्या करना है, ए, अब इस वाले को निकालते हैं। चलो इसमें थोड़ी सी डंडी खींच देते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे ऐसा लगता था कि ये 11th की क्लास ही रखनी चाहिए थी, इतना बेसिक समझा रही हूँ मैं। चलो अब तो कोई नहीं, अब तो कर दिया, कोई नहीं, कैप्शन में डाल दूँगी मैं कि बाकी लोग ना ही पढ़ें। चलो नेक्स्ट है हमारा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या है, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। कैसे निकालना है, 1 2 3 4 5, दिखते ही समझ आ रहा है 1 2 3 4 5, प्रैक्टिस से हो जाएगा। जिसको लग रहा है ना बहुत अजीब सा है क्या हो रहा है, वो उन्हीं को लग रहा होगा जिनको नहीं आता। सी क्या है, 5 6 7, ठीक है। मतलब इन दोनों का अब यूनियन करूँगी, इन दोनों का क्या करूँगी, यूनियन। यूनियन मतलब रिपीटेड वाले एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब देखो इन दोनों सेट को देखो, क्या समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों सेट क्या है, हो गए इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये जो चीज़ है ना, ये आपके हो गए इक्वल, ठीक है। ये चीज़ आपकी इक्वल हो गई, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं ऐसे। अब अगर मैं यूनियन के अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट ले लूँ तो ए ही मिलेगा। अगर मैं किसी कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट क्या होता है, कुछ भी नहीं, अगर मैं कुछ भी नहीं के साथ अपना यूनियन ले लूँ तो मेरे को मैं ही तो मिलूँगी, ठीक है। ए यूनियन ए ही मिलता है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ, देखो यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, तो सबसे बड़े सेट को यूनियन करोगे ए के साथ तो सबसे बड़ा सेट ही तो आएगा। अभी जब मैंने आपको एक लॉ बताया जहाँ मैं आपको ये समझा रही थी कि आप ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो आप ए यूनियन बी करोगे तो क्या मिलता है आपको, ए मिलता है। क्यों, क्योंकि ए बड़ा है, ये वाला छोटा है, जो बाद वाला आता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ये तो कहना चाह रही हूँ। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ हो, ठीक है। तो अगर मैं सब कुछ का यूनियन करूँगी किसी भी नॉर्मल सेट के साथ, किसी भी नॉर्मल सेट के साथ, तो वो सब कुछ ही तो आएगा, क्योंकि उसमें रिपीटेड वाला एलिमेंट एक बार काउंट हो जाएगा, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 सेट का यूनियन किया यूनिवर्सल सेट के साथ, तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके रेशनल की जगह रियल लिख दिया, इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो उसमें क्या 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो एक ही बार तो काउंट होगा, ठीक है। तो ये 1 के बराबर नहीं, मैंने गलत लिखा था, मैं आपकी चेक कर रही थी नॉलेज। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका यूनिवर्सल सेट U, क्योंकि बड़ा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ना कि 1 है। 1 तो एक ही बार है ना, बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे जब आप यूनियन करोगे। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, तो आपने सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिखे ना दोनों सेट के, सारे एलिमेंट्स मतलब यूनिवर्सल सेट। गॉट इट, चलो, होप यू गॉट इट। नाउ वी हैव मूव टू इंटरसेक्शन। नाउ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन भी यहाँ वेन डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है। अब आई एम गोइंग टू डू द इंटरसेक्शन पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। मेरे को लगता है कि मेरे को इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, सो आई विल डू दिस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। मैं पढ़ के फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई थिंक दैट विल बी लिटिल बेटर। सो टिल देन सीखते रहिए, बने रहिए, बाय, टेक केयर।